Hello guys, welcome to ePedagogue. My name is Ishan Tripathi and we were trying to cover class 9 geography. We have already completed the chapter 1. It's just that the question and answers are remaining. तो हम आज उन question and answers को will try to solve them on the basis of knowledge that we have acquired through covering the chapter, right? So let's proceed. So the first question says, The tropic of cancer does not pass through. So हमारा important यहाँ पर दो चीजें आ जाती है, एक तो not और tropic of cancer. As I have already told you that tropic of cancer is a latitude, is an important latitude that divides India almost into two equal halves. So what we are talking about is almost two equal halves, not exactly but almost two equal halves. So I had told you that tropic of cancer passes through 8 states, right? And those states from west to east, if we see, so it's like Gujarat, if we start from west. So Gujarat, a very small portion of Rajasthan, followed by Madhya Pradesh, then Chhattisgarh, then Jharkhand, then West Bengal, and then Tripura, and last Mizoram. This is how it passed through, right? So before solving the question, we will try and see that in the map. So this is the tropic of cancer that is passing through India. No, this is the tropic of cancer which is passing through India, and it is dividing India almost into two equal halves. So we'll just try to see which all states is it passing through. Okay. So it enters from here, Gujarat. It enters from Gujarat, a very small, once again, not here. It enters from here, small portion of Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, and Mizoram. This is how it passes through. So 8 states we have already studied, we have seen in the map also. Now we will try to solve the question, right? It's easy. So Rajasthan, yes, it was passing through. Chhattisgarh, yes, it was passing through. Tripura, yes, it was passing through. And the question says does not pass through. So this becomes our answer. This becomes our answer. This is our answer, Odisha. You understood? Just for your clarity, this is not your answer, this is not your answer, this is not your answer. This is your answer because the tropic of cancer does not pass through Odisha. It does not come in those 8 states which we just mentioned and made you see, right? So now next question is the easternmost longitude of India. So we have already studied that India completely falls in northern hemisphere and the eastern hemisphere. Northern hemisphere because it falls above the equator. That is why it is in the northern hemisphere. Since it falls to the east of GMT, which is Greenwich Meridian Time, so that is why we consider India in the eastern hemisphere. So whenever you are writing longitude, you will add east in front of it, no matter even if it is in west. The area, let's say Gujarat is in west, but you won't write the longitude as west, right? You will write only east because it is falling in the eastern hemisphere. Similarly, फायदा उससे फर्क नहीं पड़ता कि साउथ इंडिया है, वो साउथ इंडिया भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इक्वेटर के तो नॉर्थ में है, इसलिए लैटिट्यूड जब भी लिखोगे तो उसके आगे नॉर्थ लगाओगे, ठीक? तो हम यहाँ पर देखते हैं द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, बाय नाउ आई थिंक इट शुड बी ऑन योर टिप्स, फिर भी एक बार देख लेते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट is the westernmost longitude and 97 degree 25 minutes east is the easternmost longitude. आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग. द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग कि ये वाला जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ये कौन सा है. सो हमने जान लिया कि ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है, ठीक है. सो दिस इज आवर आंसर. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. क्या है ये? द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ऑफ कोर्स वी नो द आंसर, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट इज आवर आंसर. थर्ड क्वेश्चन सेज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद. सो बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग इज दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ कंट्रीज एंड दे आर टेलिंग यू कि भाई इसमें से कौन, दे हैव गिवन लॉट ऑफ स्टेट्स, आई एम सॉरी, दे हैव गिवन लॉट ऑफ स्टेट्स, और उन स्टेट से वो पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन से देश की टच होती है. एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको डायरेक्टली आंसर पता है. दैट कैन ओनली बी डन व्हेन यू रीड द मैप अगेन एंड अगेन, व्हेन द मैप्स आर ऑन योर फिंगर टिप्स. बट लेट्स से कि आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आता, तो इसका मतलब आप छोड़िए मत उसको, किसी न किसी तक आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए. कैसे?
इनमें से एक ऐसा स्टेट देखिए जिसके साथ आप फेमिलियर है। उत्तर प्रदेश से हम फेमिलियर हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं, खास करके मैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे एक बात तो पता है कि किसी भी हालत में उसकी जो बाउंड्री है वो म्यांमार से टच नहीं हो सकती, क्योंकि म्यांमार बहुत ईस्ट में, उत्तर प्रदेश का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी द आंसर। दूसरा हो सकता है चाइना। उत्तर प्रदेश से मैंने आज तक किसी को चाइना भी जाते हुए नहीं देखा, सो चाइना कैन नॉट ऑल्सो बी द आंसर। नेक्स्ट इज भूटान। भूटान भी उत्तर प्रदेश से नहीं जाया जा सकता, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं है। एक ही ऐसा देश है जिनके साथ इन सारे स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो टच होती है, और वो है हमारा कौन सा आंसर? नेपाल। सो नेपाल बिकम्स आवर आंसर। ठीक है, इसके अलावा हम मैप पे भी देख लेंगे एक बार, जिससे और क्लैरिटी हो जाए। बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट ये वाला फ्रंटियर, ये वाला फ्रंटियर। तो उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, सिक्किम भी है, और सबके साथ किसका बॉर्डर टच हो रहा है? नेपाल का बॉर्डर टच हो रहा है। सो दैट बिकम्स आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग यू इज बेसिकली दे आर लेटिंग यू वन ऑफर कि आप कावारट्टी आइलैंड अगर आप जाते हैं तो आप उसमें से इनमें से कौन सी यूटी में आप जा रहे हो, राइट? सो वी ऑलरेडी नो कि कावारट्टी इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। इट्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, एंड लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि इंडिया के साउथ वेस्ट में है। अगर इंडिया यहां है तो इंडिया का साउथ वेस्ट कौन सा होगा? ये, क्योंकि साउथ ये और वेस्ट ये, तो साउथ वेस्ट ये होगा। सो बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट दिस। तो ये लक्षद्वीप है और इसकी कावारट्टी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। इसी के बारे में ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको कावारट्टी जाना है तो आप कौन सी यूटी में जाओगे? तो डेफिनेटली कहां पे जाओगे? आप लक्षद्वीप में जाओगे। सो दैट बिकम्स आवर आंसर। सो लक्षद्वीप इज आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंट्री। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ हमारी लैंड बाउंड्री टच नहीं होती है, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कौन कौन से देशों से होती है, हम उनको देखेंगे कौन कौन से देशों से होती है, अपने आप आंसर निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, ऑफकोर्स बांग्लादेश के साथ होती है यार, हम सबको पता है बांग्लादेश के साथ होती है, नेपाल के साथ होती है, भूटान के साथ होती है, तजिकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री शेयर नहीं होती, इसलिए तजिकिस्तान बिकम्स आवर आंसर। सो तजिकिस्तान इज द आंसर। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आप मैप्स की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, जब आपको अच्छे तरीके से पता हो कौन से स्टेट्स हैं, उनके साथ कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रही हैं, तब आप अच्छे तरीके से उसको कर पाओगे। ओके, अब ये बोल रहे हैं नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स lying in the Arabian Sea. We have already understood कि Arabian Sea is in which direction? Arabian Sea is in the southwest of India. और southwest of India में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? हमारे को पता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, राइट? सो लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे आंसर हो जाता है। एक बार फिर भी एक और बार देख लेते हैं कि ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट, और साउथ वेस्ट का मतलब ये हो गया ये वाला एरिया। सो दे आर टॉकिंग अबाउट अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग, हमने उसका आंसर दे दिया। ओके, अब बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि इंडिया से बड़ा एरिया लैंड वाइज किसके पास है? हमने इसका निमोनिक भी याद किया था, राइट? ये पूछ रहे हैं कि इनसे हमसे बड़ा देश और कौन कौन सा है लैंड वाइज। तो हमने देखा था कि रशिया सबसे बड़ा था, फिर कनाडा था, फिर यूएसए था, फिर चाइना था, फिर ब्राजील था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया था, और फिर 7वें नंबर पे हमारा देश था, राइट? ये देखो यही होगा, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा निमोनिक था जिसके थ्रू हमने उसको याद करने की कोशिश करी थी। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट? हमने ये तो जान लिया कि साउथ वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। वैसे ही साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में अंडमान सी है या बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, और उस बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, एक बार हम देख भी लेते हैं, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दे आर आस्किंग अबाउट दिस वन, ये बे ऑफ बंगाल, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, और इसी के अंदर पड़ता है आपका ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे अंडमान सी भी पड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारा साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और दोनों को मिला के ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ओके ओके। विच आइलैंड कंट्रीज आर आर सदर्न नेबर्स? तो हमारे को पता है कि हमारी
कुछ लैंड नेबर्स हैं हमारे और कुछ हमारे सी नेबर्स हैं। हमारे पास सी नेबर्स कौन कौन से हैं? हमारे अगर साउथ ईस्ट में देखोगे तो श्रीलंका, और अगर हमारे साउथ वेस्ट में देखोगे तो हमारे मालदीव्स आ जाएगा, राइट। इसको भी देख लेते हैं मैप के जरिए, आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो इधर कहीं, इधर यहाँ पे दिखाया नहीं है, यहाँ पर कहीं मालदीव्स है और ये रहा हमारा श्रीलंका। मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट ये है, साउथ वेस्ट वो है। समझ में आ गया? सिंपल, ओके। चलिए, सो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब ये बोल रहा है कि सन जो है वो राइज करता है 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम कंपेयर करें गुजरात से इन द वेस्ट, बट हमारी घड़ियां एक ही टाइम शो करती हैं, कैसे? राइट, वो कैसे होता है? हाउ डज दिस हैपन? हमने ऑलरेडी ये बात अच्छी तरीके से पढ़ी थी कि देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IST विच इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वी ऑलरेडी अंडरस्टूड कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ऑपरेशनल कन्वीनियंस के वजह से हमने एक स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया है। क्योंकि अगर हम लॉन्गिट्यूड को देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक वो एक्सटेंड होता है। अगर नेचुरली हम टाइम को सेट करने बैठ जाएं तो उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा इन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में। अगर ऐसा होता है तो ट्रेन्स कैसे चलेंगी, सरकारें कैसे काम करेंगी, ऑफिसेस कैसे काम करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आने के चक्कर हो सकते हैं। इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया है जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट ईस्ट और वेस्ट में ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच इज नथिंग बट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, राइट, विच पासिस थ्रू 5 स्टेट्स which we have already understood through a mnemonic called as मौका। सो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स हैं, मौका के जरिए हमने याद किया था, जिनके थ्रू IST पास करता है। मिर्जापुर नैनी के पास से पास होता है उत्तर प्रदेश में। और इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो भी टाइम हो रहा होता है, वो चाहे इंडिया का कोई भी कोना कॉर्नर हो, वहां पर हमारी घड़ियां वही टाइम दिखाती हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड टाइम है जो कि इंडिया ने अडॉप्ट करके रखा है। उसे कौन संभालता है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो दिल्ली के अंदर है, राइट। सो और हमने ये क्यों किया था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कन्वीनियंस की वजह से किया था। दिस इज योर आंसर एंड दिस हैज एक्चुअली ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू वर्बली, ठीक है। सो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं, इसको आप देख लोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देयर इज नथिंग न्यू रिटन इन दिस, इट्स वेरी सिंपल एंड नॉर्मल, ओके। The second thing is the central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? Okay. So as I have already told you that India had its trade relations long back, okay? Or before sea route, the land route used to be there with which India used to connect with all the other nations, right? But then in 1498, Vasco da Gama discovered a sea route which came through Africa, right? And then in 1869 what happened? There was this Suez Canal जो कि डेवलप किया गया और उसकी वजह से 7000 किलोमीटर की बचत हुई और अब आराम से जो है कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकते हैं। If you see the strategic location of India, you will be able to understand कि अगर कोई कंट्रीज जो वेस्ट एशिया में हैं यानी या सेंट्रल एशिया में हैं, वो सारे देशों को अगर साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना है तो दे विल हैव टू पास थ्रू इंडियन ओशन टेरिटरी, राइट। And that is why this peninsula that protrudes in the Indian Ocean, it's a very strategic important point, क्योंकि ये एक किस्म से कनेक्टिंग पॉइंट है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, उनके ट्रेड के बीच में, उनके सारी चीज़ों के बीच में। इनफैक्ट चाइना श्रीलंका में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? क्यों उन्होंने हम्बनतोता पोर्ट पे जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया, या क्यों बाकी जो उन्होंने श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट करी? वो इसलिए करी क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इंडियन ओशन में चाइना का पूरा अच्छी तरीके से दबदबा बने और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बने। ये आप मैप के ज़रिए समझो तब आपको समझ में आएगा। ये रहा इंडियन ओशन। इन देशों को अगर इन देशों से, ये जो टाइगर इकोनॉमीज कहलाई जाती हैं, इनके साथ अगर ट्रेड करना है अगर सी के माध्यम से, तो उनके पास एक ही चीज बचती है, ये रेड सी सुएज कैनल के होते हुए वो यहां से ऐसे करके ट्रेड करें। और ये तभी पॉसिबल है जब वो इंडियन ओशन से होके गुजरेंगे। ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसीलिए चाइना ने क्या किया है, इस एरिया को खूब ज्यादा इन्फ्लुएंस, यहां पर अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए श्रीलंका में खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया। इनफैक्ट उनकी सारी चीजें उनके प्लान के हिसाब से चल रही हैं और लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप देखो,
स्ट्रैटेजिक वाइज देखो, मिलिट्रीली वाइज देखो, आपको कितना कुछ समझने को मिलेगा। किसी भी देश को जब आप घेर लेते हैं 2-3 तरफ से, तो वहां से आपको फायदा होता है, क्योंकि एक देश कितने फ्रंटियर्स पे लड़ेगा भाई। नॉर्थ ईस्ट में चाइना से उसको लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान अच्छे तरीके से सबको पता है कि इंडिया का दुश्मन है। यहां से अगर श्रीलंका भी उनके पास में आ जाता है, चाइना के पास, उनके इन्वेस्टमेंट के तहत, तो चाइना यहां से भी अटैक कर सकता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हो तीनों फ्रंटियर वो खोल देंगे। तो कुल मिला के इंडिया के लिए हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए चाइना खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं कर रहा, इन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। वो सब इसलिए क्योंकि ताकि इंडियन ओशियन में वो अपना दबदबा बढ़ा सके। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, सेशल्स, मडागास्कर, मॉरिशियस, ये सब, इन सब में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट जिबूटी यहाँ पर है, अफ्रीका के यहाँ पर। सो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन हमारा ये था। इसके अंदर एक और लाइन जो बुक के अंदर है वो ये है कि किसी भी ओशन के साथ, किसी भी देश की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशन के साथ, इसीलिए ये जो इंडियन ओशन नाम है ये जस्टिफाइड है, क्योंकि इंडिया हैज गॉट अ लॉन्ग कोस्टल बाउंड्री विद इंडियन ओशन। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 7516.6 किलोमीटर जो है वो टोटल जो कोस्ट लाइन है वो है, जो कि स्टेट्स और इनफैक्ट जो 2 यूटीज हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उन सबको मिला दिया जाए तो इतना है। इसलिए वो नाम को जस्टिफाई करता है। आप इन सारे पॉइंट्स को इसमें देख सकते हो। श्रीलंका वाला पॉइंट मैंने इसमें डाला नहीं है क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक पे नहीं है। जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू कि क्या हो सकता है इसका। इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा हम थोड़े मैप्स को देख लेते हैं। मैप रिलेटेड क्वेश्चन से इनको देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आई मीन ये भी कोई, ये तो आसान है ना। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है कहाँ पर? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? आपके बे ऑफ बंगाल में। सो ये है, और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हम इस आइलैंड की बात कर रहे हैं और हम इन आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल मैप दिया जाएगा आपको आपके स्कूल में, आपके टेस्ट में। आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें नाम ऐसे नहीं दिया रहेगा पुडुचेरी कहाँ पर है, लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार कहाँ है। वहां आपको सिर्फ दिया रहेगा आइलैंड, आपको मार्क करना है कि किसकी बात हो रही है। सेकेंड इज द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कंफ्यूजिंग टू। सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है किसको कहा जाता है? बेसिकली कुछ देश हैं जिनको मिला के इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स टुगेदर फॉर्म द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ऐसे याद नहीं हुआ? ठीक है, दूसरे तरीके से याद करते हैं। ये देश तो आपको पता ही है, बस आपको याद रखना है कि इसमें 3 देश नहीं हैं। चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड म्यांमार इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। तो इसका आप कुछ भी बना लो, मैक बना लो। जो मैक एयर होता है वो एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं, तो MAC इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, एक से नहीं, इससे पहले है द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो आपको एक फिजिकल मैप दिया जाएगा, उस फिजिकल मैप के जरिए आपको डॉट लाइन कर करके उसको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होके पास करा देना है। आपका आंसर राइट हो जाएगा। ओके जैसे इसमें दे रखा है, देखो गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ऐसा नहीं दे रखा होगा, आपको वो फिजिकल मैप दे रखा होगा, इसके अंदर स्टेट्स की नाम नहीं दे रखा होगा। स्टेट्स का नाम आपको खुद लिखना है वहां पर। ओके, द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज। सो डिग्रीज में अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? हमने पढ़ा था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो कि इधर है, वही हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड हो जाता है। तो आप यहाँ पर उसको मार्क कर सकते हो डॉटेड लाइन से कि यहाँ पर है, और उसके आगे लिख भी देना 37 डिग्री 6 मिनट। द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेन लैंड। देखो ये क्या बोल रहा है, इंडियन मेन लैंड की बात कर रहा है, ये इंदिरा पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, ये इंडियन मेन लैंड की बात कर रहा है, यानी तमिलनाडु का जो टिप है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये उनकी बात कर रहा है, और इसमें ये बताया कि इंडियन क्या है उसका, तो आपको अच्छे तरीके से बताया 8 डिग्री 4 मिनट्स इज द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सॉरी लैटिट्यूड।
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। गुजरात के उधर मार्क कर दो और उधर अरुणाचल प्रदेश के मार्क कर दो और एक में लिख दो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट जो कि गुजरात की तरफ होगा और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ होगा। आपका अपना काम हो गया। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, सो ये है हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु जो कि 3 सीज से मतलब घिरा हुआ है। कौन कौन से 3 सीज हैं? एक तरफ है इसके अरेबियन सी, दूसरी तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल और तीसरी तरफ नीचे की तरफ इंडियन ओशन। तो ये 3 चीज से ये घिरा हुआ है, ठीक है, सिंपल है। ओके, द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ये पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रेट जो होता है वो बेसिकली क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी है जो 2 मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। सो ये पाक स्ट्रेट है कहां, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये है पाक स्ट्रेट, ये छोटा सा लाइन है इधर जो आपको ऑफ कोर्स यहां दिख नहीं रहा होगा बट फिर भी एक बार कोशिश करता हूं। इसके बीच में ये है पाक स्ट्रेट जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है और यहाँ बे ऑफ बंगाल मेजर वाटर बॉडी और इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है। इसके अलावा पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नर को भी ज्वाइन करता है। तो आप इसको सिंपल सा एक लाइन से डॉटेड लाइन से बना दोगे और लिख दोगे पाक स्ट्रेट, आपको आंसर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या बोल रहा है, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सो आपको यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया को मार्क करना है। सिंपल सी बात है, आपको ऐसा फिजिकल मैप दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हाँ, तो ये एक लद्दाख एक यूटी है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यहाँ पे दिल्ली एक यूटी है, इधर कहीं दिल्ली यूटी है, इसके अलावा चंडीगढ़ इधर यूटी है, इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव और पुडुचेरी, ये दोनों पुडुचेरी ही है। ये क्या है, ये सारे यूटीज हैं, कुल मिला के 8 यूटीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। बस आपको इनको मार्क करना है और आपको आंसर्स के मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप यू आर स्टडिंग वेल। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, द ड्रिल इज सेम, you put down your queries in the comment box and I'll try to answer them. Keep studying. Thank you so much. Best of luck.